آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے عرب ملک کی جسے عرب کا پیرس کہا جاتا ہے۔ اس ملک کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر کئی پیغمبر تشریف لائے، یعنی مقدس سرزمین ہے۔ لیکن آج 2026 میں یہاں پر حیا والی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ ملک آج انتہائی فحش اور اوپن ہے، بالکل ایک یورپی ملک کی طرح بن چکا ہے، اور یہاں کی لڑکیاں اوئے وے، مطلب کمال ہے یار۔ جی ہاں، یہ ہے لبنان۔ آج ہم جانیں گے کہ 2026 میں اس ملک میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہاں کا ماحول کیسا ہے، یہودی اس ملک میں کیا کام کرتے ہیں، یہاں کی خوبصورت لڑکیاں دوسرے عرب ملکوں میں کیا کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، لبنان کی وہ نائٹ لائف جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے چینل کو تو سبسکرائب کر ہی دیا ہوگا۔ تو چلیے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ لبنان، جس کا سرکاری نام ریپبلک آف لبنان ہے، عربی میں اسے الجمہوریت اللبنانیہ کہا جاتا ہے۔ عام زبان میں پوری دنیا اس خوبصورت ملک کو صرف لبنان کے نام سے ہی جانتی ہے۔ لبنان ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی حسن، ثقافتی رنگا رنگی اور تاریخی ورثے کی وجہ سے نہ صرف عرب دنیا بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ ملک عرب دنیا کے دیگر ممالک سے بالکل مختلف ہے، جہاں پہاڑ، سمندر، قدیم شہر اور جدید طرز زندگی ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ لبنان کا کل رقبہ 10,442 مربع کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 161واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے، جبکہ ایشیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لبنان کا نام پچھلے 4000 سال سے آج تک تبدیل نہیں ہوا، جو اسے دنیا کے قدیم ترین ناموں والے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ یہ سرزمین تاریخی اور روحانی اعتبار سے بھی بے حد اہم ہے۔ لبنان کی سرزمین پر اللہ رب العزت نے کئی پیغمبران اسلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے توحید اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اسی وجہ سے لبنان کو آج بھی پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ لبنان میں ایک گاؤں موجود ہے جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس گاؤں میں ایک قدیم مسجد بھی موجود ہے، جس کے اندر حضرت شیس علیہ السلام کا مزار مبارک واقع ہے۔ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے مزارات عراق اور فلسطین میں بھی منسوب کیے جاتے ہیں، جو اس عظیم نبی کی امتوں میں مقبولیت اور عقیدت کی علامت ہے۔ دوستو، لبنان کی اگر سرحدوں کی بات کی جائے تو شمال اور مشرق میں شام، جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں بحیرہ روم سے ملتی لبنان کا دارالحکومت بیروت ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر لبنان کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ بیروت کا کل رقبہ تقریباً 67 مربع کلومیٹر ہے، اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 4,33,249 افراد پر مشتمل تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بیروت تقریباً 5000 سالوں سے آباد ہے، اور آج بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کا پہلا تاریخی تذکرہ مصر کی سلطنت کی امرنا خاتون کے زمانے سے ملتا ہے، جو 14ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ لبنان کے شہر حارثہ میں ایک بہت بڑا مجسمہ موجود ہے، جسے لیڈی ماریان یا عربی میں سیدہ لبنان کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کو 1904 میں مکمل کیا گیا تھا۔ اس کا وزن 15 ٹن، اونچائی 5 میٹر اور قطر بھی 5 میٹر ہے۔ لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، اور یہ لبنان کی ثقافتی پہچان بن چکا ہے۔ لبنان کا سب سے قدیم شہر بائبلس ہے، جسے جبیل یا جوبل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مسلسل 88 صدیوں سے آباد ہے اور یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ اس سرزمین پر مختلف سلطنتوں نے راج کیا، جن میں مصری، فنیشین، آشوری، فارسی، ہیلینسٹک، رومن، فہد، جینوز، مملوک اور عثمانی سلطنتیں شامل ہیں۔ بائبلس کی آبادی تقریباً 5000 افراد پر مشتمل ہے، اور اس کا رقبہ 4.16 مربع کلومیٹر ہے۔ لبنان کا شہر بیلکون بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسی شہر کے رہائشی تھے۔ اس قدیم شہر میں رومیوں کے بنائے ہوئے ٹیمپل کمپلیکس موجود ہیں، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بیلکون کا رقبہ تقریباً 7 مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی 80,000 افراد پر مشتمل ہے۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں لبنان کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات پر۔ تو لبنان کی لڑکیاں جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، یہاں کی خوبصورت لڑکیاں پہلی نظر میں ہی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں آپ کو اکثر دبئی، کویت اور دیگر عرب ممالک میں نظر آئے گی، خاص طور پر یہاں کے ڈانس کلب میں، جہاں یہ لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر عربی کو خالی کر دیتی ہیں۔ ان لڑکیوں کا ڈانس بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ لبنان کا وقت پاکستان سے تقریباً 2 گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے 2 اور آدھے گھنٹے پیچھے ہے۔
लुबनान में मौजूद कारून झील इंतहाई मशहूर है, जिसे इंग्लिश में द लेक ऑफ काराउन कहा जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इस झील में नहाने की इजाज़त नहीं है, मगर आप कश्ती के ज़रिए इसके हसीन मनाजिर का लुत्फ़ ज़रूर उठा सकते हैं। मुहतरम नाज़रीन, दीगर अरब ममालिक के बरअक्स लुबनान तेल और गैस पर बहुत कम इन्हिसार करता है, क्योंकि यहाँ तेल के ज़खायर महदूद हैं। लुबनान में सोने के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं, जो मुल्की मईशत का एक बड़ा ज़रिया आमदनी है। लुबनान का तारीख़ी किरदार भी हैरत अंगेज़ है। दुनिया में सबसे पहले हुरूफ व ख़त लिखने का एजाज़ लुबनान को हासिल है, यानी आज जो हम लिखते हैं उसकी बुनियाद लुबनान की सरजमीन पर रखी गई। यहाँ तक कि कश्ती रानी का भी एजाज़ लुबनान को जाता है, जो आज दुनिया की एक अहम ज़रूरत है। लुबनान का मौसम दीगर अरब ममालिक के मुकाबले में मोतदिल है। गर्मियों में मौसम खुशगवार और सर्दियों में काफ़ी सर्द होता है। मुल्क के कई हिस्सों में बर्फ़बारी भी होती है और अक्सर अरब ममालिक के लोग सर्दियों में बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने के लिए लुबनान का विज़िट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि लुबनान की सरजमीन इंतहाई मुक़द्दस है, लेकिन मौजूदा 2026 का अगर आप लुबनान देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताज़ीम और मुक़द्दस नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कुछ इंतहाई ओपन है। बेहयाई यहाँ पर हद से ज़्यादा है। आज लुबनान में जगह जगह पर शीशा क्लब्स और डांस क्लब भी मौजूद हैं, और यहाँ की तकरीबात में किया जाने वाला रक्स भी इंतहाई फेश होता है, जिन्हें देखकर ही इंसान तौबा करे। ये अमीर ज़ादे अय्याश अरब अपनी ज़िंदगी ऐसी ही गुजारते हैं। वैसे तो लुबनान में शराब पीने पर और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद हर साल करोड़ों लीटर शराब बैरून मुल्क फ़रोख्त की जाती है और ख़ुद ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं। एक मुसलमान मुल्क होने के नाते भी यहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। अब आप ही बताएं कि आज का मुसलमान कैसा है और हम कैसे फ़लस्तीन, इराक़, शाम, लुबनान की मदद करें। खैर, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए और इन अय्याश अरब मुल्कों को भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। लुबनान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अरबी है, जो इसकी सरकारी ज़बान भी है। इसके अलावा यहाँ फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बानें भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती हैं। लुबनान की कौमी डिश किब्बा है, जो गोश्त और गंदम से तैयार की जाती है, जबकि इसमें खुश्क मेवाजात भी शामिल किए जाते हैं। ये डिश लुबनानी सकाफत की एक अहम पहचान है। लुबनान की शामें अक्सर शीशा के बगैर अधूरी समझी जाती हैं। लड़के हों या लड़कियां, शीशे का इस्तेमाल यहाँ आम है। शीशा क्लब उमूमन सारी रात खुले रहते हैं, जहाँ लोग मौसीकी और महफिलों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लुबनान में शराब खुलेआम दस्तयाब है। पूरे मुल्क में बड़े बड़े शराब खाने मौजूद हैं, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का खासा रश देखने को मिलता है। यूरोप के करीब होने की वजह से हर साल लाखों यूरोपी सयाह लुबनान का रुख करते हैं, जो मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा सहारा है। लुबनान के तकरीबन हर शहर में डांसिंग बार्स और शीशा क्लब मौजूद हैं। यहाँ का मशहूर रिवायती रक्स दबका कहलाता है, जो शादी ब्याह की तकरीबात के साथ साथ सकाफती प्रोग्रामों और बार्स में भी आमतौर पर देखा जा सकता है। नाजरीन, पहली जंग अज़ीम के बाद लुबनान की सरजमीन फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम आ गई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब फ्रांस कमज़ोर हुआ तो लुबनान ने बिलाखिर 1943 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। फ्रांसीसी दौर हुकूमत में लुबनान को एक जदीद और ओपन मुआशरे की हैसियत हासिल थी, और ये किसी यूरोपी मुल्क से कम नहीं समझा जाता था। इसी वजह से आज भी फ्रांसीसी शहरियों की एक बड़ी तादाद हर साल लुबनान का दौरा करती है। मौजूदा टाइम में अगर देखा जाए तो लुबनान फ़लस्तीन के हक़ में खड़ा है और हर तरह फ़लस्तीन की हिमायत करता है। पिछले महीनों में जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो लुबनान ने इसराइल पर हमला किया, जिसके जवाब में फिर इसराइल ने लुबनान के ऊपर हमला किया। इस तरह उन दोनों के दरमियान भी कुछ देर तक गर्मा गर्मी चलती रही, लेकिन ये तो साबित हुआ कि लुबनान गैरतमंद मुल्क है और हम कैसे हैं ये आपके सामने हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो फ़लस्तीन और लुबनान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और तमाम मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद अता फरमाए, ताकि वो मिलकर उन मज़ालिम का मुकाबला कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। लुबनान अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, गैर वाबस्ता तहरीक और इस्लामी ताउन तंजीम का बानी रुकन भी है। ये एक दरमियानी आमदनी वाला मुल्क है, जहाँ शरअ तालीम 85% से ज़ायद है। लुबनान तालीम को खुसूसी अहमियत देता है, जबकि यहाँ का मेडिकल सिस्टम भी काफ़ी मजबूत है। सरकारी सतह पर इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं और अद्वियात दीगर अरब ममालिक के मुकाबले में निस्बतन सुस्ती हैं। लुबनान का दारुल हुकूमत बैरूत तारीख में 7 मरतबा तबाह हुआ, मगर हर बार दोबारा आबाद किया गया।
आज भी बैरूत सयाहों का सबसे बड़ा मरकज़ है, जहां रेस्टोरेंट्स, डांस क्लब्स और तफरीही मकामात कसरत से मौजूद है। इसीलिए सयाह यहां क़याम को तरजीह देते हैं। लुबनान में यहूदियों की आबादी भी मौजूद है, ताहम ये मुसलमानों और ईसाइयों के मुकाबले में काफ़ी कम है। मुल्क में 2 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं जो मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों के लिए हमा वक्त फ़ाल है। इसी तरह लुबनान में 2 बड़ी बंदरगाहें भी हैं, एक बैरूत और दूसरी तराबलस में वाक़ है। अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई आबादी लुबनान में पाई जाती है। यहाँ के लोग आम तौर पर मिलनसार, खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाले माने जाते हैं। मुल्क की तकरीबन 15% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है और लुबनान अपने सेब के बागात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लुबनान का सालाना GDP तकरीबन $79 बिलियन है, जबकि फ़ीकस आमदनी तकरीबन $12,000 के करीब है। लुबनान का कॉलिंग कोड +961 है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है और पूरे मुल्क में वसी और अरीज सड़कों का जाल मौजूद है और इसे अरब का पेरिस भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की लुबनान के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।